चौथी कक्षा के छात्रों सुप्रभात। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बोलती गुफा। बोलती गुफा। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है और इस पाठ में शेर और सियार की कथा है। शेर और सियार। तो यहाँ पर शेर और सियार की ये कथा कैसी है, इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई है, तो वो आज आपको पता चलेगा। यहाँ पर शेर, टाइगर और जैकल जैकल तो इनकी ये कथा है। तो देखिए क्या होता है इस कहानी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है ये। तो सुनो, पाठ का नाम है बोलती गुफा। गुफा गुफा कन्नड़ में इसे क्या कहते हैं? कन्नड़ में इसे कहा जाता है गुहे। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ बोलती गुफाಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡುವ ಗುಹೆ. ಈ ಮಾತಾಡುವ ಗುಹೆ ಹೇಗಿದೆ? ಹೇಗೆ ಗುಹೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ? ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲ ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಗುಹೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮಾತಾಡುವ ಗುಹೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂದಿರ್ತವೆ? ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈಗ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಕಥೆ ಎಂಥದ ಕಥೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಯಾರ್, ಜಾಕಲ್ ಹೇಗೆ ಹುಲಿಯನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫರಾರಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಕಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. ನಾ ಕಥೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಪಾಠ ಪರಿಚಯ. पाठ परिचय ये है। इस पाठ में शेर और सियार की कहानी के द्वारा लेखक ने बताया है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है. बुद्धि ಯಾವತ್ತೂ ಬಲದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬಲ ನಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಶೋಲ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ, ಆದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿಯ ಉಪಯೋಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಯಾರ್. ಸಿಯಾರ್ ಅಂದರೆ ಜಾಕಲ್, ಅದು ಇದೆ. फॉक्स, ये जैकल है. तो अब यहाँ पर होता क्या है? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಈ ಜಾಕಲ್, ಸಿಯಾರ್ ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಪ್ರಾಣಿ. ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನನಗೆ ತಿನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಘಟನೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ದಿನ ಹುಲಿ ಬಹಳ ಹಸಿವು ತಾಳಲಾಗದೆ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾಂಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹುಲಿಗೆ. ಆವಾಗ ಹುಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಂಜೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅವಾಗ ಹುಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಯಾರ್ ಜಾಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಯಾರ್ ಆ ಜಾಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತೆ. ಏನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾಲಿನ ಚಿಹ್ನವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಲಿನ ಚಿಹ್ನವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹುಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದೆ. ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹುಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಹುಲಿ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಗುಹೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ನಾ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಬಾ ಬಾ ಒಳಗೆ ಬಾ ಒಳಗೆ ಬಾ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ನನಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಏನು ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೇ ಗುಹೆ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದ ಹುಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಹೌದು, ಗುಹೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರಬಹುದು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಹೊರಗೆ ಕೂತಿದ್ದು ಜಾಕಲ್ ಸಿಯಾರ್ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಯಿತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಿಂದ ಹುಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಷ್ಟು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಯಾರ್ ಜಾಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಒಳಗೆ ಹುಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಈ ಪಾಠವು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಸಿಯಾರ್ ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ನಾ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನಗತೆ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಪಾಠ ಓದ್ತೀನಿ, ಪಾಠ ಓದಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. बोलती गुफा, स्पीकिंग केव्स। तो कैसे गुफा बातें करती है, सुनो। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह बहुत भूखा था। दिन भर भटकने पर भी उसे भोजन नहीं मिला। अंत में निराश होकर वह एक गुफा में जाकर बैठ गया। उसने सोचा रात में कोई ना कोई जानवर जरूर यहाँ आएगा, उसको मारकर उसी से अपनी भूख मिटा दूंगा। देखो, शेर कई दिनों से भूखा था और बेचारा परेशान था। शेर उसे एक गुफा मिल गई, एक केव मिल गया, एक गुफा मिल गई। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस गुफा के भीतर पहुंच जाऊं। इसके भीतर जाने के बाद में क्या होगा, इस गुफा में रहने वाला जो भी है वो शाम को यहाँ आएगा और मैं उसे खा जाऊंगा। तो ये शेर ने सोचा। क्या हुआ देखिए, रात में एक सियार वहां आया। उसने अपनी गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान देखे। रात के समय वो गुफा सियार की थी। सियार वहां आया और सियार ने देखा कि वहां शेर के पैरों के निशान हैं। वो घबरा गया, शेर अंदर बैठा है, अब क्या करे। उसने मुंह से आवाज नहीं निकाली। वह समझ गया कि शेर गुफा में गया तो है पर बाहर नहीं आया है, यानी बाहर नहीं निकला है, अभी भी अंदर बैठा है। क्योंकि गुफा से बाहर आने के
निशान गुफा के बाहर नहीं थे। वह अच्छी तरह समझ गया कि गुफा के अंदर बैठा शेर उसका शिकार करना चाहता है। सियार चतुर था, परंतु उसने तुरंत एक उपाय सोचा। गुफा के दरवाजे पर जाकर उसने आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, ओ मेरी गुफा, तुम आज चुप क्यों हो? रोज जब भी मैं बाहर से आता हूं तो तुम बोलती हो, आज तुम क्यों नहीं बोल रही हो? यहां सियार समझ गया कि मेरी गुफा में शेर बैठा है और शेर मुझे खाना चाहता है। अब मुझे शेर अंदर बैठा है या नहीं, ये बात का मुझे पता लगाना है। अंदर शेर बैठा है तो मुझे कैसे पता लगाना है? मैं अंदर जाकर देखूंगा तो शेर मुझे खा जाएगा। तो मुझे बाहर बैठे बैठे शेर को कैसे ढूंढना है? अंदर शेर है या नहीं, ये कैसे पता लगाना है? तो उसने एक उपाय सोचा और कहा, ओ मेरी गुफा, ओ मेरी गुफा, तुम हमेशा मुझे अंदर आते ही चिल्लाती थी, कहती थी, आओ आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, आपका स्वागत है, स्वागत है। लेकिन आज आपने मेरा स्वागत नहीं किया। हे गुफा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्यों तुम मेरा स्वागत नहीं कर रही हो? तो ये बातें सुनकर गुफा के अंदर बैठा शेर सोचने लगा, हाँ, गुफा भी बातें करती होगी, इसीलिए तो बाहर सियार बैठे बैठे ऐसा गुस्सा हो रहा है। तो अंदर बैठे शेर ने क्या किया देखो। गुफा के अंदर बैठे शेर ने सोचा कि संभव है गुफा रोज बोलती होगी, मगर आज मेरे डर से मौन है। यानी शेर सोचने लगा कि मैं आज गुफा में बैठा हूं, आज मैं गुफा में बैठा हूं, इसीलिए ये गुफा भी बातें नहीं कर रही, ये गुफा भी शांत बैठी है, तो मैं ही बात करता हूं। देखो, इसलिए मैं ही आवाज देकर बुलाता हूं। ऐसा सोचकर शेर ने सियार को आवाज लगाते हुए कहा, आ जाओ, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। शेर की आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि शेर गुफा के अंदर ही मौजूद है। यहां शेर ने बड़े जोर की आवाज में कहा, आ जाओ, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आओ, अंदर आओ। सियार ये आवाज सुनकर डर गया और सियार समझ गया कि मेरी गुफा में शेर बैठा है। अब सियार ने क्या किया देखो। सियार ने क्या किया, चतुर सियार अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गया। चतुर सियार डर गया, अरे बाप रे, मेरी गुफा में शेर बैठा है, चलो यहां से भागो। वो वहां से भागने लगा और ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और वहां से वो भाग गया। और यहां पर हुआ क्या, बहुत देर तक जब कोई गुफा के अंदर नहीं आया तो शेर बाहर आया। वहां किसी को न देखकर शेर अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप करने लगा। शेर अंदर बैठकर इंतजार कर रहा है, अब सियार आएगा, मैं उसे खा जाऊंगा, मैं सियार को खा जाऊंगा, फाड़ कर खा जाऊंगा उसे। लेकिन हुआ क्या, सियार बाहर आया ही नहीं। सियार जब बाहर नहीं आया, सियार जब अंदर नहीं आया तो शेर बाहर निकल गया। उसने देखा कि सियार अंदर नहीं आ रहा है तो वो खुद बाहर निकल आया और बाहर आकर देखता है तो वहां ना सियार है ना वहां पर कोई दूसरा जानवर है। शेर को अपनी मूर्खता पर, अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ और शेर को लगा
कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। तब उसे पता चला कि गुफा कभी बोलती नहीं है, गुफा तो पत्थर की है, मिट्टी की बनी है, वो कैसे बातें कर सकती है। ये सब झूठ था। उसका झूठ पकड़ा गया और सियार समझ गया। सियार बड़ा बुद्धिमान था और सियार वहां से 9-2-11 हो गया, वहां से भाग गया। शेर अपनी मूर्खता पर रोने लगा और शेर फिर से भूखा रह गया। शेर को शिकार नहीं मिला। बच्चों, हमें इस कथा से यही सीखना है कि हमें मूर्ख लोगों की संगति नहीं करनी है। हमें मूर्ख लोगों से दूर रहना है, फुलिश लोगों से दूर रहना है, क्योंकि हम मूर्ख लोगों की संगति में पहुंचेंगे तो वो मूर्ख लोग भी हम पर भारी पड़ जाएंगे और हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। हमें हमेशा बुद्धिमान लोगों से जुड़े रहना है। अगर हम मूर्ख लोगों से जुड़ जाएंगे तो कल हमारा विनाश निश्चित है। और ये बातें हम बोलती गुफा पाठ से सीख सकते हैं। धन्यवाद।